Assalamu alaikum everyone. This is your course in charge, Dr. Nikhat Server. Today I would like to start my another session related to your course, Radio News Reporting and Production. In this session, we will discuss a new topic which is about, in this session, we will discuss a new topic which is about Vox Pop. Okay, first, the key concept of Vox Pop. Vox Pop is a Latin word. It means voice of the people. Vox Pop is a Latin word derived from a Latin word vox populi, and the meaning of this word is voice of people or man in the street interview. There are two concepts. First is voice of the people, and another concept is man in the street interview. It's a different kind of interview. In this interview, we use the opinion of ordinary member of public, adds a useful dimension to the coverage of a topic that might otherwise be limited to a straight bulletin report or a studio discussion among official or experts. The principle is for the broadcaster using a portable recorder to put possibly two specific questions on a matter of public interest to people selected by chance. This is very important. Specific questions on a matter of public interest. With whom? To people selected by chance, and to add it together their replies to form a distillation of the overall responses. The aim is to present a sample of public opinion. The broadcaster must never claim it to be aesthetically valid or even properly representative. Basically, Vox Pop ये एक sort of interview होता है, ठीक है. इसके जो important concept से related word है, अभी मैंने आपको बताया था, hopefully आपने उसको note कर लिया होगा, ठीक है. एक तो ये होती है a voice of people, और कौन होते हैं वो लोग? Man in the street, जिनके आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं. और ये जो इंटरव्यू होता है बिकॉज बेसिकली ये इसलिए होता है कि आप ऑर्डिनरी मेंबर, ठीक है, ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पब्लिक, आपने उनकी ओपिनियन लेनी होती है, ठीक है. ये कोई सॉर्ट ऑफ रिसर्च नहीं होती है, हल्की फुल्की आपने एक ओपिनियन लेनी होती है. यू पुट सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और आप इसमें जो पीपल लोगों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं बाय चांस, ठीक है. रैंडमली जो है लोगों को चांस वहां पे जाते हैं, जो भी आपकी साइट होती है, और वहां पे आप एक क्वेश्चन रेज करते हैं, और रैंडमली जो भी वहां पे आपको लोग नजर आ रहे होते हैं, आप उनसे वो पूछ रहे होते हैं, ठीक है. तो अब इसमें यह है कि वॉक्स पॉप किन लोगों का लेना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन रेज करने चाहिए, कौन सी साइट आपने चूज करनी चाहिए जब आप वॉक्स पॉप का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, ठीक है. किस तरह इंटरव्यू करना है, अगर वो बच्चों का है तो वो किस तरह आपने उसको फोकस करना है, और अगर बड़ों से इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप किस तरह लेंगे. रिकॉर्डिंग के से पहले आपने क्या कुछ मेजर्स करने होते हैं, क्वेश्चन किस तरह करेंगे, किस तरह स्टार्ट करेंगे, देन एट द एंड आप इसकी जो है एडिटिंग कैसे करेंगे. तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू वॉक्स पॉप, ठीक है. तो अब तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि वॉक्स पॉप से क्या मुराद ली जाती है. द ओपिनियन ऑफ सम ऑफ पीपल we spoke,
सम ऑफ पीपल, ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है सम ऑफ पीपल। अब एक मॉल में जा रहे हैं, वहां मॉल के सारे लोगों के नहीं लेंगे ओपिनियन, जो भी आपका करंट इशू है, टॉपिक है, सम ऑफ पीपल, कुछ लोगों की आपने जो है वो ओपिनियन लेके वो फिर आपने ऑन एयर करनी होती है, ठीक है। गैदरिंग मटेरियल आपका ये होता है कि दिस इज बिकॉज गैदरिंग मटेरियल आउट ऑन द स्ट्रीट फॉर एन आफ्टरनून प्रोग्राम will almost certainly overrepresent shoppers, tourists, and the unemployed, and below on businessmen, motorists, night shift workers, farmers, ठीक है। अब इनमें से किसी भी टॉपिक को फोकस करके इन लोगों से इंटरव्यू लेके एक, ठीक है, एक जो आप कलेक्टिवली जो राय होती है किसी भी इशू से रिलेटेड आप ले रहे होते हैं। Since the interviewing is done at a specific time and generally at a single site, the sample is not really even random. It is merely unstructured, and no one can tell what the views obtained actually represent. ठीक है, basically unstructured आपका जो होता है ये सैंपल होता है इंटरव्यू का, ठीक है। रैंडम का वर्ड भी यूज होता है, बट जो एक और रैंडम से और बेहतर अब है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। आप कोई पहले से इसमें प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं कि आप वहां पे जाएंगे, साइट पे जाएंगे और हर दूसरे बंदे का लेंगे या हर तीसरे का लेंगे। आपने एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में चलना होता है, क्योंकि कुछ लोग फॉरन डिनाई भी कर देते हैं, बाज़ लोग फॉरन नहीं देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपने उसको अवॉइड करना होता है। आपने 15-20 लोगों का लेके और फिर उसको एडिटिंग में 10 ही लोगों का रह जाता है, तो ये डिपेंड अपॉन कि टाइम क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, रिकॉर्डिंग किस तरह हुई है, तो एडिटिंग में भी बहुत दफा चीजें जो है आपने स्किप करनी पड़ती है, तो इन चीजों का ज़ाहिर है आपने ख्याल करना पड़ता है। So no great claim should be made for the sample vox pop on the basis of its being truly the voice of the people. ठीक है, तो आपने इसका कोई लगा बंदा उसूल नहीं है, लेकिन हाँ बस आपने एक रैंडमली और अनस्ट्रक्चर वे में जाके लोगों से कम्युनिकेट करना होता है और फिर उनका इंटरव्यू लेना होता है। इट इज इजियर टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक ग्रुपिंग एप्रोप्रिएट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, अब किन किन लोगों का आप ले सकते हैं, आपने जाहिर है कि पहले से इसके लिए अपने आपको माइंड आपका तैयार करना होगा कि आप किन किन लोगों का ले सकते हैं। अर्ली राइजर्स, children, bus drivers. If the question is to do with an increase in petrol prices, gas prices, CNG prices, one will find a motorist together with some fairly comment. ठीक है, आप ये गैरेज भी जा सकते हैं, आप ये जो है अगर आप पेट्रोल प्राइसेस या सीएनजी प्राइसेस राइज हुए तो पेट्रोल पंप पे भी जाके कुछ लोगों को वहां से सेलेक्ट करके रैंडमली अनस्ट्रक्चर्ड वहां उनके व्यूज ले सकते हैं, ठीक है, अबाउट दी प्राइस जो राइज हुआ है। Any garage forecourt, similarly, a question on medical care might be addressed to people coming out of a hospital. ठीक है, अभी आप ये पेंडेमिक देख रहे हैं, इससे रिलेटेड अगर आपने कोई जाके आप वहाँ पे वॉक्स पॉप कर रहे हैं रेडियो के लिए, तो इसमें भी आप जाके वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे खड़े हो सकते हैं और लोगों से वहाँ पे जाके व्यूज ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पब्लिक प्लेसेस आपकी लाइक हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, स्कूल्स, इवन रेलवे स्टेशन जो है आपके, वो भी बहुत अच्छे, वहाँ पे आपको कुछ चीजें मिल जाती हैं फॉर वॉक्स पॉप, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी जाके आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों तक उससे रिलेटेड वॉक्स पॉप के थ्रू चीजें पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि इतनी सारी चीजें हैं जो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं फॉर वॉक्स पॉप, ये आपके जो है ये टॉपिक्स हैं। देन कम टू, अब ये आपको चीजें इसमें समझ आ जानी चाहिए, आपने इसके कीवर्ड्स डेफिनेटली आप अलग कर लें। इसके जो है ओपिनियन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, people selected by chance, aim is present a sample of public opinion, opinion of some people, unstructured sample, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो अगर आप डेफिनेटली इन कीवर्ड्स को भी अगर आप अपने पास लिख के रख लेंगे तो एक आपका बेसिकली जो माइंड है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। As the question to which reaction is required become more specific, the group among which the interviews are carried out may be said to be
more representative. Views on a particular industrial dispute can be canvassed among the factory gate. Opinion on a new show sought among the first night audience. ठीक है, कोई नई फिल्म आई है, न्यू शो है, कोई थिएटर है, तो आप जाके वहाँ पे जो उनकी फर्स्ट ऑडियंस है उनसे जाके आप वहाँ पे इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप वहाँ जाके वहाँ से उन लोगों के जो भी कंसर्न है, उनकी कोई रिजर्वेशंस है, ठीक है, तो आप उस पर जाके बात कर सकते हैं। फैक्ट्री में भी जा सकते हैं आप, ठीक है। और अभी मैंने आपको ये मिसाल दी है कि कोई न्यू शो हो रहा है, वहाँ जाके भी कर सकते हैं वॉक्स पॉप। A more accurate statement would be, we asked some of these strikers assembled at the factory gate this morning what they thought। ठीक है, आपने वहां जाके जो है एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपने इंट्रोडक्टरी जो है एक क्वेश्चन करना है और आपने ये मेंशन जरूर करना है। ठीक है, आपने ये नहीं कहना है कि वी आस्क्ड द स्ट्राइकर्स अबाउट द डिस्प्यूट, वी आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्राइकर्स। ठीक है, जो भी है फैक्ट्री से रिलेटेड है, सम, आपने जाहिर है पूरी फैक्ट्री के लोग हैं तो आप नहीं वॉक्स पॉप कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का कर रहे हैं, तो ये चीजें आपने मेंशन करनी जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है कि बेशक इसमें आपका सेंटेंस बड़ा हो जाए, बट एक्यूरेसी एंड बैलेंस इसको आपने लेके चलना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी किसी भी किस्म की वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था की कंसेप्ट रिलेटेड टू वॉक्स पॉप। ठीक है, की कंसेप्ट में आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आ गई, मैंने आपको यही बताया था कि ओपिनियन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पीपल सेलेक्टेड बाय चांस। एम इसका है प्रेजेंट अ सैंपल ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ सम पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनस्ट्रक्चर्ड सैंपल। ठीक है, और अनस्ट्रक्चर्ड सैंपल है आपका ये की कंसेप्ट में, ये आप सारी चीजें ऐड करेंगे। देन अगेन जो अभी मैंने आपको एंड में बताया है रिलेटेड टू की कंसेप्ट के आपने बिल्कुल बैलेंस और एक्यूरेसी, ठीक है, अब ब्रेविटी को अपने माइंड में रखेंगे, बट अगर आपका सेंटेंस लंबा भी होता है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आपने ये जरूर बताना है कि आपका टास्क क्या है। ठीक है, अगर आप किसी थोड़े लोगों से कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा सम ऑफ द स्ट्राइकर्स, ठीक है, वी आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्राइकर अबाउट द डिस्प्यूट। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि वी आस्क्ड द स्ट्राइकर्स। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, दिस इज रिलेटेड टू योर की कंसेप्ट ऑफ वॉक्स पॉप। ओके, कम फ्रेजिंग द क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन डेफिनेटली आप जब कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके पास टाइम होता है, आप एक क्वेश्चन देते हैं और बहुत सारे लोगों से रैंडमली कर रहे होते हैं, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्वियस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोग आसानी से वो क्वेश्चन समझ जाएं। ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चन में है वो उनको कुछ बोलने का आपने चांस देना है, आपने इस तरह के यस और नो वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, आपने एक कोई इशू रेज करना है और उस पर रिलेटेड जो भी है लोगों से क्वेश्चंस करना है। Having decided to include a vox pop in the program, the producer or the designated reporter must decide carefully the exact form of words to be used. ठीक है, you must know exact form of words to be used, और इसके लिए आपने ज़ाहिर है थोड़ी सी प्लानिंग करके जाना है, आपने इसका होमवर्क करके जाना है, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप क्या क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपने एक ही क्वेश्चन करना है जो हर एक से पढ़ना है, तब वो वाला क्वेश्चन जो है, इससे जो भी आपको कलेक्टिवली चीजें आपके सामने आएंगी, वो उसकी एडिटिंग में भी आपको फिर बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, आप डिफरेंट लोगों से डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर वो वॉक्स पॉप नहीं रहेगा। ठीक है, वॉक्स पॉप का मतलब यही है वॉइस ऑफ द पीपल, जो आप अनस्ट्रक्चर्ड और रैंडमली लोगों से कर रहे हैं, बट एक क्वेश्चन रेज करके आप डिफरेंट लोगों से उस पर ओपिनियन ले लेते हैं। द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एड्रेस टू समवन with little preparation or warm up, and so must be relatively simple and unambiguous। ठीक है, सिंपल होना चाहिए, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वर्ड ना हो कि वो समझ ही ना पाए, तो फिर डेफिनेटली वो आपको आंसर क्या करेंगे। Since the object is to be obtain opinion rather than a succession of yes or no answer। ठीक है, आपने ओपिनियन लेना है, आपकी सारी क्या फोर्स करने हैं आपको, आप ओपिनियन ले रहे हैं, आप सिर्फ yes और no के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। The question form must be carefully constructed। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली करना है, यस और नो से हटके करना है। Once decided, the same question is put each time, otherwise the answer cannot sensibly be added together।
ठीक है, आपने एक ही क्वेश्चन करना है, अपना क्वेश्चन चेंज नहीं करना है। ठीक है, आपने एक ही क्वेश्चन है जो सेलेक्ट करके डिफरेंट लोगों से करते रहना है ताकि फिर वो एडिटिंग में आपको हेल्प करे। यूजफुल क्वेश्चन फॉर्म इन दिस context is what do you think? ठीक है, आपने जो सारा एम्फेसिस देना है, आप ओपिनियन कैसे लेंगे, what do you think about? ठीक है, आप ये पूछेंगे कि आप इस इशू के बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो what do you think आपने करना है, आपका जो सारा इसमें जो स्ट्रेस होगा what do you think। ठीक है, क्यों आपने why नहीं करना है, आपने स्ट्रेस करना है what do you think। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जैसे कुछ रिसर्च हुई थी, एक इस बुक में रिसर्च दी हुई है अबाउट वॉक्स पॉप। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है और उस क्वेश्चन का ज़ाहिर है उनको डिफरेंट आंसर हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कोट किए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्रपोजल टू रेज द स्कूल लिविंग एज। ठीक है, तो क्वेश्चन इनका क्या है, about what do you think of the proposal to raise the school living age। अब ये क्वेश्चन इन्होंने प्रिपेयर कर लिया, अब ये डिफरेंट लोगों से इसके बारे में राय ले रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली क्या करना है, ओपिनियन लेना है और उनको रिएक्शन, लोगों का रिएक्शन देना है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट एंड बड़े अच्छे इसमें आंसर्स हैं। जैसे फर्स्ट आंसर है, क्वेश्चन में फिर बताती हूँ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्रपोजल टू रेज द स्कूल लिविंग एज। ठीक है, कि ये जो प्रपोजल है, जो भी इनके अकॉर्डिंग टू दिस, की गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई होगी रिलेटेड टू न्यूज। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप गवर्नमेंट की इस पॉलिसी पे आपका क्या कहना है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं करते हैं, क्योंकि जिनको पॉलिसी नहीं पता होगी, ठीक है, कि गवर्नमेंट की कोई न्यू पॉलिसी आई है रिलेटेड टू एजुकेशन, तो वो फिर आपको इस पे क्या बताएंगे, वो तो कहेंगे कि हमें नहीं पता कौन सी पॉलिसी आई है। ठीक है, तो इन्होंने इसको इस तरह एक क्वेश्चन में कर दिया, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्रपोजल टू रेज द स्कूल लिविंग एज। ठीक है, तो इस पे इनको जो आंसर मिला, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, इट विल कीप द यंगस्टर्स आउट ऑफ मिसचीफ। ठीक है, ये किसी ने इनको ये आंसर दिया है कि इनको ये आइडिया अच्छा लगा, तो उन्होंने उसका फौरन ये बता दिया। दूसरे ने कहा, इट विल नॉट डू मी एनी गुड विल इट, वो उनसे ही पूछ रहे हैं। ठीक है, एक और इनके पास आंसर आया होगा कि किसी और ने इनको आंसर किया, आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, ये भी आंसर आया कि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्रपोजल टू रेज द स्कूल लिविंग एज। ठीक है, ये पता चल रहा है कोई पॉलिसी आई है स्कूल लिविंग एज की, अगर रेज कर रहे हैं, तो अगर इन्होंने ये कह दिया कि आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग अबाउट इट, फिर भी आप उनसे कह सकते हैं कि ठीक है आपने नहीं सुना है, बट आप इसमें अपनी राय तो दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है बड़ी आपने इसको इस तरह केयरफुली कंस्ट्रक्टेड करना है। ठीक है, ताकि जो जिनसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में जवाब दे दें। बेसिकली आपका इससे क्या है, आपने क्या हासिल करना है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द क्वेश्चन इज फ्रेज्ड सो दैट इट कंटेन्स द पॉइंट टू व्हिच रिएक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपने रिएक्शन लेना है लोगों का। और ये जो क्वेश्चन है अभी जो मैंने आपको बताया था स्कूल रेज वाला, एज वाला, तो इसमें आपको बड़े इसमें रिएक्शन मिलेंगे। ठीक है, कोई कह रहा है कि हाँ ठीक है, कोई कह रहा है कि नहीं, आई डोंट थिंक ये सही है, इतने लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह के मतलब लोगों के अपने अपने व्यूज आ सकते हैं। ठीक है, एक इसमें आंसर ये है कि इट विल कॉज एन एनॉर्मस बर्डन ओवर टीचर जॉब एंड क्लासरूम्स एंड थिंग लाइक दैट इट्स बॉन्ड टू रेज स्टैंडर्ड ओवरऑल इवेंचुअली। ठीक है, तो कोई किसी का आंसर ये भी है। तो आपने ऐसा करना है कि जिसमें लोगों के रिएक्शन एक्शन ये आपको पता चले। In addition to testing opinion, the vox pop can be used to canvass actual suggestions or collect facts. But where the initial response is likely to be short, a follow-up is essential. ठीक है, अब आप कोई ऐसा वॉक्स पॉप में आपने ऐसा क्वेश्चन किया है जो आप कोई फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है इनिशियली आपको इस वॉक्स पॉप में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स ना मिले, आपके अच्छे आंसर्स ना आए। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप इसको फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं और फिर आप इसका एक फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़े दिन बाद इसका एक फॉलो अप कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन करें कि जिसमें लोगों को कुछ बोलने की, ठीक है, अपनी अंदर से जो होते हैं ना हिडन, उनकी जो एक शाइनेस खत्म हो और उसके बारे में कुछ बोलें।
ठीक है, हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये लोगों से पूछ सकते हैं, कोई नई फिल्म लगी है तो आपने उनसे ये पूछ लिया हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा, तो इसमें थोड़े से चांसेस ये होते हैं कि ज्यादा बोलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये वर्कशॉप से रिलेटेड कि आपने इसमें क्वेश्चन किस तरह करना है। द वर्कशॉप प्रोड्यूसर मस्ट रिमेंबर दैट द प्रोसेस इज नॉट about conducting an opinion poll or assembling data, but making interesting radio which has to make sense in its limited context. ठीक है, आप ये जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ठीक है, आप ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप कोई बहुत बड़ा कोई डाटा कलेक्शन कर रहे हैं और कोई इलेक्शन से रिलेटेड आप ठीक है एक डाटा कर रहे हैं और उसका बड़ा, आपको बेसिकली क्या करना है, आप सिर्फ एक इंटरेस्टिंग रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें ओवरऑल जो है एक आपने लोगों की राय को, ठीक है, दूसरों के, ठीक है, जो एक रैंडमली आपने लोगों को सेलेक्ट किया और इनकी राय आप अवाम के सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये अबाउट द क्वेश्चन रेजिंग हो गया। Then a characteristic of the workshop is that in the final result the interviewer's voice does not appear. A characteristic of the workshop is that in the final result the interviewer's voice does not appear. The replies must be such that they can be joined together without further explanation to the listener, and hence the technique is distinguished from simply a succession of interview. The conversation should not be so complex that the interviewee contribution cannot stand on its own. ठीक है, तो एक ये है कि जब आप फाइनली रिजल्ट एक बना रहे होते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला है आप उसकी आवाज को दें, आप जो है डिफरेंट आंसर्स को कलेक्ट करके, ठीक है, आप एट द एंड एक रिजल्ट आवाम के सामने ला रहे होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हर एक की आप आवाज नहीं देंगे, ठीक है, आप मतलब हर एक के क्वेश्चन आप उसमें शामिल करेंगे, मतलब जो इंटरव्यूअर है, ठीक है, बार बार वो क्वेश्चन, उसने एक क्वेश्चन एक दफा रेज कर दिया है और डिफरेंट लोगों की, जब आप इसको फाइनल एडिटिंग कर रहे हैं तो वो डिफरेंट लोगों की आवाज को, डिफरेंट लोगों के आंसर को, व्यूज को, ठीक है, वो आप लोगों के सामने लाएंगे। दिस इज अबाउट दी फ्रेजिंग द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन करें तो इस तरह का कोई, तो इसका एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में आपको कह दूं कि क्वेश्चन इस तरह करें कि आप क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो, आसान अल्फाज में हो और इस तरह हो कि लोग उस पर कुछ बोलना चाहें, मतलब बोल सकें, ठीक है, इतना वो ना हो कि लोगों को समझ ही नहीं आए कि आप बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल वे में आपने क्वेश्चन करना है और रैंडमली फिर लोगों से उसमें बात करनी है। देन कम टू नेक्स्ट इंटरव्यू। अब इसके लिए आप किसका इंटरव्यू लेंगे? डेफिनेटली आप जा रहे हैं जहाँ किसी भी जगह पे, तो अब आपने ये अपने माइंड बना के जाना है कि आपने किसका इंटरव्यू लेना है। ठीक है, ओल्ड एल्डरली पीपल का लेना है या बच्चों का लेना है या यंगस्टर्स का लेना है, तो ये आप पहले से इस बारे में सोच के जाएंगे जो भी आपकी साइट है जहाँ भी आप जा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली अगर आप बच्चों के लिए जा रहे हैं तो ये इसमें तो आपको बहुत ज्यादा फिर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी होती है। ठीक है, और ये बच्चों से लें चाहे बड़ों से लें, आप चाहे जैसे स्कूल के बाहर खड़े हैं या मॉल्स में जा रहे हैं तो एक परमिशन, ठीक है, ये तो आपने लेनी ही लेनी होती है। आप कहीं भी जाएं, किसी का भी इंटरव्यू करें तो एक जो भी है, ठीक है, मॉल में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपने रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने होंगे। ठीक है, वहां जाएंगे आप, वहां जो भी उनके ओनर होंगे आप जाएंगे उनसे इंटरव्यू लेंगे, तो ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं, children voices can be especially engaging in this context. However, it is too easy for an adult interviewer to be thought to be too dominating, even intimidating in this respect. It is wise to take a few safeguards. ठीक है, अगर आप बच्चों का इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो आपने कुछ safeguards लेनी है, कुछ स्टेप्स लेने हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू जो एक सिचुएशन होती है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, एथिक्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, तो वो बहरहाल अगर आप बच्चों का लें, बड़ों का लें, किसी का भी लें, आपने ये नॉर्म्स और उसको साथ लेके चलना होता है, एथिकली आपने चलना होता है। It is a legal requirement not to interview children under 16 without their parents' permission. ठीक है, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं
स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अब तो हमारे यहाँ भी ये होता है कि हम बच्चों का इंटरव्यू ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट द परमिशन। जो भी है अथॉरिटी, अगर स्कूल है तो आपने स्कूल से लेना है, पेरेंट्स होंगे तो पेरेंट्स से आप लेंगे। टॉकिंग टू अ ग्रुप इज देयरफॉर बेस्ट डन विद इन अ फैमिली or perhaps a school classroom, which obviously requires the permission of the teaching staff. ठीक है, अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो उसमें भी आपने जाके जो आपका स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, आपने स्कूल में जाएंगे, वहाँ परमिशन लेंगे, ग्रुप में बात करेंगे, ठीक है, तो वो भी आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। दिस कैन नॉट बी डन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट बट टेक्स टाइम टू सेट अप। ठीक है, ये लम्हे भर का काम नहीं होता है, आपने इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको चीजें सेट करनी पड़ती है, अपनी साइड देखनी होती है, कहाँ बैठना है, अपनी रिकॉर्डिंग की चीजें देखनी होती है, परमिशन लेनी होती है, अगर बच्चे हैं बड़े हैं उनको एक मेंटली आपने प्रिपेयर करना होता है, तो ये कोई ऐसे पल भर में करने का काम नहीं है, इसमें आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना होता है। सेकेंड, एस्टेब्लिश कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, prohibit asking children about private family matters or for opinion on areas like to be bound their judgment। ठीक है, आपने अगर आप बच्चों से इंटरव्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने एक ऐसा क्वेश्चन करना है जो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट हो, कोई फैमिली मैटर से रिलेटेड नहीं हो। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बाज दफा बच्चों से हम नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू फैमिली, सिंगल पेरेंट्स हैं, तो आपने इन चीज़ों का, ठीक है, ख्याल करना है कि आप बच्चों के लिए अगर करने जा रहे हैं तो आपने कुछ कोड्स हैं, बच्चे हैं चाहे बड़े हों, टीन एज हो, आपने कोड ऑफ कंडक्ट और इन चीज़ों, एथिक्स, नॉर्म्स, इनका ख्याल करते हुए क्वेश्चन करना है। With any interviewee, level eye contact is needed. So once I sits down among the group, अगर आपने इंटरव्यू करना है तो ठीक है, आपका आई कांटेक्ट लेवल जरूर होना चाहिए, ठीक है, जो आप इंटरव्यूवी के साथ कर रहे हैं, आप इंटरव्यूअर हैं, ले रहे हैं, और जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो आप ग्रुप में बैठ जाएं अगर ग्रुप का है, और रैंडमली अगर आप ले रहे हैं तो भी आपने आई कांटेक्ट उनसे जरूर करना है। ठीक है, तो आई कांटेक्ट करना जरूरी है, आप किसी भी स्टेज पे किसी भी उससे बात कर रहे हो, बट आपको जो एक आई कांटेक्ट है वो बहुत जरूरी होता है। Fourth, unless the children know you, there will be some warm-up time when they can get used to you and the equipment. ठीक है, आपने स्टार्ट करने से पहले एक warm-up टाइम देना है, ठीक है, बच्चों से एक हल्की फुल्की, बच्चे हों चाहे बड़े हों, एक आपने हल्की फुल्की उनसे जो है एक फ्रेंडशिप टाइप कुछ गॉसिप करके आपने फिर अपने, अगर आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आप स्कूल जा रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा उस माहौल में उनको लेकर आना है और फिर उनसे बात करनी है। With a mixed group of boys and girls, it is sensible to have interviewers of both genders present to do the questioning, and another adult to see that no pressure is imposed on the children. When children are brought into the studio, they should always be accompanied by their own family. ठीक है, अगर आप स्टूडियो में ला के बच्चों से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपने किसी एक टॉपिक पे बच्चों से बात की है रैंडमली, तो फिर आपने डेफिनेटली उनके साथ कोई ना कोई जो होगा फैमिली मेंबर होगा, या फिर आप उनसे परमिशन लेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू करते हुए चाहे आप बड़ों की लें, चाहे बच्चों की लें, टीनेज की लें, एडोलेसेंट की लें, आपने एक परमिशन, कोड ऑफ एथिक्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, इनका ख्याल करते हुए इंटरव्यू लेना है, और जो भी रिलेटेड आपकी जगह है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से जाके आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, वहां जाके इजाजत लेनी है, चीजें सेट करनी है, उनसे तो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, और फिर आपने अपना जो है ये काम शुरू करना है, विच इज रिलेटेड टू इंटरव्यू। चूजिंग द साइट, ठीक है, वर्क्स पॉप कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है, अब ये आपके सोचने का काम है, आप वर्कशॉप करने जा रहे हैं, डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है, ये आपका एक एक्सक्लूसिव होगा कि आप खुद इस पे सोचें आपको कहाँ जाना है, ठीक है, हम प्रोड्यूसर आपको गाइड नहीं करेगा, आपने खुद सोचना है, एक्सक्लूसिव चीजें आपने देनी है, वर्कशॉप में देनी है, कौन सा ऐसा इशू चल रहा है, ये कौन सा ऐसा इशू है, ठीक है, ये जो है आप बहुत अच्छे इशूज रेस कर सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड भी कर सकते हैं, टीन एज है, किसी भी आम लेमैन से भी रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, ये आपका काम है कि आप
खुद सेलेक्ट करें कि आप किस साइट, which site are suitable for you for your question. If vox pop questioning is to be carried out among a specific group, this may itself dictate the place. Football fans at a match, shoppers at a market, holiday travelers at the airport, different malls, ठीक है, film halls, food spaces, different restaurants, children play area. मतलब ये आपके इन्वायरमेंट में भरी हुई चीजें, आपने खुद सेलेक्ट करना है कि आपने कहाँ जाना है. आप रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, हॉलीडे है तो उससे रिलेटेड डिफरेंट स्पॉट्स पे जा सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आपने कितना इसको एक्सक्लूसिव करना है. If the material is to be gathered generally, the site or sites chosen will be limited by technical factor. So as to permit easy editing at a large stage, these are to do with a reasonably low but essentially constant level of background noise. ठीक है, फिर आपने साइट चूज करते हुए आप थोड़ा सा आपने टेक्निकली भी चलना है. आपने ये भी देखना होगा कि कौन सी चीज है, ठीक है, हम कहाँ पे जाएं जो हमें टेक्निकली वो चीज हेल्प करेगी. ठीक है, आप ऐसी साइट पे नहीं खड़े हो सकते हैं जहाँ आपको बड़ा मसला हो, फिर आप एडिटिंग करें तो इतनी नॉइज आ रही हो कि आपकी चीजें ही समझ ना आए, क्वेश्चन समझ ना आए. तो हाँ, ये टेक्निकली भी आपने चीजें देखनी होंगी. ठीक है, तो आपने चूज करते हुए आपको एक टेक्निकली चीजें जरूर माइंड में रखनी होंगी. द लिसनर एक्सपेक्ट्स टू हियर सम बैकग्राउंड एक्चुअलिटी एंड इट वुड बी undesirable to exclude it altogether. However, in essence, the broadcast is to consist of snatches of conversation in the form of remark made in a public place, and under these conditions, immediate intelligibility is more difficult to obtain than in the studio. ठीक है, अब आपका ये काम है कि आप सोचें कि आपने कॉन्वर्सेशन कहाँ करनी है. ठीक है, पब्लिक प्लेस पे आपने करनी है. ठीक है, तो आपने कुछ एक्चुअलिटी भी आपको सुनानी होगी. ठीक है, ये इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आप ये सोचना है कि ये एक्चुअलिटी इतनी भी ज़्यादा ना हो कि फिर आपके काम में हर्डल हो जाए. ठीक है, लाइक आप किसी स्ट्रीट पे गए, टूटी सड़क है, आप वहाँ पे जाके लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं. ठीक है, आप सुबह के टाइम खड़े हो गए. ठीक है, ये पुल है, कोई ब्रिज है जो पिछले 2 साल से बने जा रहे हैं, और स्कूल जाने वाले बस सुबह की टाइम 7 से 8 बजे जाने वाले कितने लोग हैं वहाँ पे जो ऑफिस वर्कर हैं, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, उनको जो प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको नॉइज भी आएगी. तो इन चीज़ों का तो फिर आपने माइंड में ख्याल रखना है कि नॉइज को कितनी, ठीक है, आपने इस चीज़ को जहन में रख के अपना जो साइट है वो चूज करनी है. A side street will be quieter than a main road, but a constant traffic background is preferable to intermittent noise. ठीक है, आप बेहतर है कि आप मेन रोड पे ना खड़े हो. अगर कोई सड़क से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं तो आप साइड स्ट्रीट पे ले जाएं. ठीक है, ताकि एक थोड़ी सी बैकग्राउंड भी आपको वॉइस भी आती रहे, और फिर जो है आपका जो इंटरव्यू भी है वो आसानी से रिकॉर्ड हो जाए. For this reason, the interviewing site should not be near a bus stop, traffic lights, or other road junction. ठीक है, तो करीब नहीं होना चाहिए बहुत. बस स्टॉप पे होगा तो क्या होगा, बस स्टॉप पे तो आपको सिर्फ वॉइस और नॉइज और हॉर्न्स की आवाज और लड़ाई झगड़े. तो थोड़ा सा आपने साइट को पहले जाके चेक करके माइंड बना के फिर आपने खड़े होना है कि कौन सी जगह बेहतर है आपके लिए. The editing process becomes obvious if buses are made to disappear into thin air and lorries arrive from nowhere. Similarly, the site should be free from any sound which has a pattern of its own, such as music, public address announcement, ठीक है, और क्लॉक टिक टिक. अगर ये चीजें अगर ऑलरेडी आ रही हैं, कहीं से म्यूजिक आ रहा है, पब्लिक एड्रेस कोई हो रहा है, तो ये चीजें आपको डेफिनेटली, ठीक है, ये हर्डल करेंगी. Editing the speech so that it makes sense will be difficult enough without having to consider the effect of chopping up the background. A traffic free pedestrian or shopping mall is often suitable.
but a producer should avoid always returning to the same places. One of the attraction of the vox pops in the general form as well as in the individual item is its variety. ठीक है, ये अट्रैक्शन है वॉक्स पॉप की कि इसमें वैरायटी होनी चाहिए. ठीक है, आपने प्लेसेस सेम प्लेसेस हमेशा अवॉइड करना है कि आप एक ही जगह जाके नहीं गया मॉल्स में हमेशा, क्योंकि आप बहुत वहाँ कन्वीनियंट फील करते हैं, वहाँ इतना नॉइज भी नहीं होता है, टेक्निकली भी आपको वहाँ पे कोई मसला नहीं होता है, परमिशन का भी इतना मसला नहीं होता है. तो ठीक है, तो ये नहीं है कि आप जब भी वॉक्स पॉप करें तो सेम प्लेस पे ही करें आप. ठीक है, आपने आपने वैरायटी इसमें लेकर आनी है. ठीक है, जब तक वैरायटी नहीं होगी तो वो उसमें एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव सॉर्ट ऑफ जो चीज़ है वो नजर नहीं आएगी. देन कम टू नेक्स्ट. तो साइट चूज करते हुए आपने अपने क्वेश्चन से रिलेटेड जाहिर है माइंड बनाना है और साइट चूज करनी है और नॉइज और इन चीज़ों का, इन फैक्टर को अपने माइंड में रखना है. नेक्स्ट रिकॉर्ड. अब आपने रिकॉर्ड करना है. ठीक है, अब पहला तो जमाना नहीं है कि आप रिकॉर्डर लेके जा रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास माइक होता है, माइक्रोफोन होते हैं. ठीक है, अगर आप मोबाइल भी लेके जा रहे हैं, मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो चीज़ें आपने ज़ाहिर है पहले से सबको चेक करना होता है. ठीक है, बाज़ दफ़ा आप ये ना हो कि आप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही आपने क्लिक नहीं किया और सारी बात कर ली और रिकॉर्डिंग नहीं हो, तो इन चीज़ों का रिकॉर्डिंग में आपने ख्याल करना है. ठीक है, पीछे जो वॉइस आ रही है उसका ख्याल करना है आपने. तो ये सारी चीज़ें देख के फिर आपने रिकॉर्डिंग अपनी शुरू करनी है. The machine and its microphone are tested before leaving base, and on site a further check made to ensure an adequate speech level against the background noise. ठीक है, आप अपने स्पीच लेवल भी आप चेक करेंगे, आप अपने जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं उस डिवाइसेस को भी रिकॉर्डिंग से पहले चेक करेंगे ताकि आप ये श्योर हो कि हाँ ये सही रिकॉर्डिंग हो रही है. अपना लेवल चेक करना है आपने, आपका जो स्पीच लेवल है. ठीक है, अपना पिच, वॉल्यूम का जो आपका जो है पेस, पॉज, रेट ऑफ योर क्वेश्चन, कि आपने बहुत ज़्यादा फास्टली भी नहीं बोलना है, बहुत स्लो भी नहीं बोलना है, कितना पॉज देना है. तो ये सारी चीज़ें दायरे है आपने रिकॉर्डिंग से पहले अपना माइंड में रखनी है. Some 10 seconds of general atmosphere should be recorded to provide a spare background for the fades in and out. From here, on the recording level, control should not be altered, otherwise the level of the background noise will vary. ठीक है, तो आपने 5-10 कुछ सेकंड्स थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से एक आपने रिकॉर्डिंग करनी है और फिर जो है आपने अपनी असल जो है रिकॉर्डिंग की तरफ आना है. ठीक है, उसमें भी आपने एक बैकग्राउंड नॉइस को माइंड में रख के फिर अपनी रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट करनी है. तो उसके लिए थोड़ा सा आपने पहले से कुछ प्रिपरेशन करनी होगी. ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिकॉर्डिंग हो गया. अब आपका नेक्स्ट हो गया पुटिंग द क्वेश्चन. ठीक है, हाँ, आप रिकॉर्डिंग के बाद आपने रिकॉर्डिंग भी कर ली है, रिकॉर्डिंग के लिए अब आप आए हैं. ठीक है, तो अब आप किस तरह क्वेश्चन रेज करेंगे. इट इज नॉर्मल फॉर द रिपोर्टर टू फील शाय अबाउट हर फर्स्ट वॉक्स पॉप. ठीक है, अगर आपका फर्स्ट है तो डेफिनेटली आपको एक हर्डल होगा, आप थोड़ा सा शाय फील करेंगे, लेकिन ये जो शायनेस और थोड़ी सी आपकी नर्वसनेस ये जो फर्स्ट टाइम ही होती है, फिर उसके बाद ये रिलीज हो जाता है आपका. इट मे बी हेल्पफुल टू रिमेंबर दैट द passerby is being asked to enter the situation without the benefit of any prior knowledge, and it is probably far more nervous. However, the initiative lies with the interviewer, who needs to adopt a friendly and positive technique. So, explain quickly who you are and what you want. Put the questions and record the reaction. ठीक है, आपने उसको जल्दी से इंटरव्यूअर जो है, ठीक है, वो भी फर्स्ट टाइम कर रहा है तो वो भी एक हर्डल फील कर रहा होगा. तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से बताना है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या रीजन है. द रिपोर्टर शुड बी ऑब्वियस रादर देन सीक्रेटिव. आपने अपने आप को फौरन शो करना है कि आप एक रिपोर्टर हैं, आप ये काम करने आए हैं. ठीक है, सीक्रेट रह के आपने काम नहीं करना है. स्टैंड इन द मिडल ऑफ द पेवमेंट होल्डिंग द माइक्रोफोन for all to see. It is most useful for the microphone to carry an identifying badge so that the approaching pedestrian can already guess at the situation and if necessary taking
take abiding action. No one should be or for that matter can be interviewed against their. आप अगर कोई नहीं लेना चाह रहे हो तो आपने उनके अगेंस्ट आके नहीं लेना है, ठीक है? छोटे अगर कोई नहीं, और आपने बताना है कि आप फलाना स्टूडियो से आए हैं और आप उनका ये ड्रॉ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं आप उसका बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आपने किस तरह स्टार्ट करना है? आपने करना है गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम रेडियो XYZ, ठीक है? आपने आइडेंटिफिकेशन अपनी बतानी है और फिर आपने बताना है कि आप ये फला रेडियो से आए हैं और आप इनसे ये एक क्वेश्चन करना चाहें, ठीक है? द रिपोर्टर कंटिन्यूज, कैन आई आस्क यू व्हाट यू थिंक ऑफ द प्रपोजल टू कीप ऑल ट्रैफिक आउट ऑफ द सिटी सेंटर? फॉर एग्जांपल अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना है, ठीक है? आप ये नहीं कहेंगे कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, कुड यू टेल मी, ठीक है? दीज आर यूजलेस थिंग, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपने उनको रोक लिया, आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको जवाब देंगे, ठीक है? तो ये आपने करना है। मैन इन द स्ट्रीट खड़े हैं आप और लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो और जो इम्पोर्टेंट बात है कि इंटरव्यू लेते हुए आपको कम से कम 20 लोगों के इंटरव्यू लेंगे, जब जाके आपके 10 इंटरव्यू जो हैं वो रिकॉर्ड होंगे। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप इसका ख्याल रखें। लास्ट है आपका एडिटिंग। जब सब कुछ आपने कर लिया तो लास्ट पॉइंट आपका एडिटिंग पर आ जाता है। आपने एडिटिंग में जो भी आपको लग रहा है नॉइज ज्यादा है, कोई क्वेश्चन अच्छे नहीं आंसर आए, तो आप इन सबको एडिट करके, ठीक है, अपने जब तक आप इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक आपने ये ऑन एयर नहीं देना है, या जो भी आपका टास्क है, ठीक है? आप स्टूडियो में जाने से पहले भी आप ये सारी चीजें एडिट के प्रोसेस को माइंड में रख के फिर आपने आगे इस पे बात करनी है, ठीक है? लिसनिंग टू द मटेरियल बैक एट द बेस स्टूडियो, द फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव एनीथिंग दैट इज नॉट टोटली इंटेलिजिबल, दिस मस्ट बी डन इमीडिएटली, ठीक है? आपको लगता है कोई आपने ऐसी चीज की है जो नहीं होनी चाहिए तो इमीडिएटली आप उसको निकाल दें और फिर जो है आप वो करें, जाके उसको फाइनल टच दें, ठीक है? इंटरव्यूअर की वॉइस जरूर होनी चाहिए, बेशक आपकी वॉइस ना आए, बट इंटरव्यूअर जिसके आपने इंटरव्यू लिया है उसकी वॉइस बहुत जरूरी है लेना, ठीक है? तो ये हो गया है आपका वर्कस्पॉट। दिस इज रिलेटेड टू योर कोर्स रेडियो न्यूज रिपोर्टिंग एंड प्रोडक्शन। इस मैंने जो है इसमें काफ़ी कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हों। इंशाल्लाह अब अगले जो है आपके सेशन में कुछ मैं चाहूँगी कि आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी कराऊँ। बहुत सारी हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, आप काइंडली इनको दोबारा रीड करें जितनी चीज़ें मैंने कराई हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ कोशिश करूँगी कुछ एक्सरसाइजेस भी कराऊँ ताकि जो आपका ये लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, ये कोई प्रैक्टिकल वे में भी आपके काम है। ओके देन, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के साथ फिर अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।